میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر رمضان شوگر مل کیس میں فرد جرم عائد، دونوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ شہباز شریف نے کہا 10 سالوں میں سرکار کے 2300 ارب روپے بچائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ابھی آپ پر الزام ہے جسے ثابت ہونا باقی ہے۔ آئندہ سماعت پر گواہان شہادتوں کے لیے طلب۔ حمزہ شہباز کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہتے ہیں عمران خان انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین محمد مشتاق چینی احتساب عدالت پیش۔ مشتاق چینی کو گزشتہ روز دبئی جاتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ رمضان شوگر ملز کے مینیجر محمد مشتاق پر منی لانڈرنگ کا الزام، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ کی ٹرانزیکشن کی۔ احتساب عدالت میں آشیانہ اسکینڈل کیس کی سماعت، احد چیمہ اور فواد حسن فواد کو پیش کیا گیا۔ ملزم موجود نہ ہو تو گواہوں کے بیانات نہیں ہو سکتے۔ نائب پروسیکیوٹر بولے ملزمان کی عدم موجودگی میں گواہوں کے بیانات قلمبند کیے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے دونوں کا موقف سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس، میاں شہباز شریف کی آج نیب آفس طلبی۔ ادھر آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حمزہ شہباز کل نیب میں طلب۔ مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات، مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ ملکی سیاسی صورتحال، نیب کیسز سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ حکومت مخالف تحریک کے ابتدائی خد و خال پر بھی بات چیت۔ میاں محمد نواز شریف جب جیل میں تھے تب بھی ملاقات کا ارادہ تھا، کوئی شک نہیں ملاقات میں سیاسی امور پر بات چیت تو ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ذاتی امور میں میڈیا سے گفتگو۔ میاں نواز شریف طبی معائنے کے لیے آج شریف میڈیکل سٹی جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں میڈیکل بورڈ میں شامل ڈاکٹرز میاں نواز شریف کا تفصیلی معائنہ کریں گے۔ محکمہ صحت کا احسن اقدام، جناح اسپتال میں میڈیکل ٹاور بنانے کا فیصلہ۔ میڈیکل ٹاور میو اسپتال کے سرجیکل ٹاور کی طرز پر بنے گا۔ میڈیکل ٹاور میں 500 بیڈز کا استعمال ہوگا، 5 سے 6 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ ماحولیات کی اینٹی اسموگ کارروائیاں، بھینی روڈ پر سٹیل ملوں میں چھاپا، غیر معیاری ایندھن کے استعمال پر 2 سٹیل ملز، 1 پائرولسس پلانٹ سیل، 2 یونٹ مالکان پر مقدمات کے اندراج کی درخواست دائر کر دی گئی۔ شہر میں برائلر کی رسد میں کمی کے باعث قیمتوں میں اضافہ، مرغی کا گوشت 6 روپے اضافے کے بعد 247 روپے فی کلو ہو گیا، زندہ مرغی 4 روپے اضافے کے بعد 170 روپے کلو میں فروخت۔ سانحہ ساہیوال کا ٹرائل لاہور منتقل کرنے کے لیے درخواست پر سماعت، پنجاب حکومت اے ڈی سی سمیت دیگر کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے کیس کی سماعت، ہائی کورٹ کی لڑکی کو باپ کے ساتھ جانے کی اجازت، خاوند کے رشتہ داروں کی لڑکی کو چھیننے کی کوشش، فریقین میں ہاتھا پائی، ہائی کورٹ کی سیکیورٹی نے صورتحال پر قابو پایا۔ میشا شفیع اور علی ظفر کی قانونی جنگ شدت اختیار کر، ہائی کورٹ نے میشا شفیع کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو 3 ماہ میں فیصلے کا حکم دے دیا۔ سیشن کورٹ میں منشیات کیس کی سماعت، ملزم کو 1 سال 7 ماہ قید اور 7000 روپے جرمانے کی سزا۔ ملزم محمد الیاس کے خلاف تھانہ نشتر کالونی میں 2017 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ سیشن ججز کے اختیارات سے متعلق کیس کی سماعت، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی چیف جسٹس کو لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش۔ درخواست گزار نے استدعا کی، سیشن جج سائل کے کہنے پر من پسند جج کو کیس مارک کرتا ہے، عدالت سیشن جج کے اس اقدام کو قلعدم قرار دے۔ طیاروں کی کمی اور فنی خرابی کے باعث 20 پروازیں متاثر، قومی ایئر لائن سمیت دیگر نجی ایئر لائنز کی 4 پروازیں منسوخ، جبکہ 16 پروازیں تاخیر کا شکار۔ اور سورج کا پارہ ہائی، شہر کے درجہ حرارت میں اضافہ، شہر کا موسم آج گرم اور خشک رہے گا، درجہ حرارت 38 ڈگری
तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते बारिश की पेशगोई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे जाती उमरा में अहम बैठक के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इब्तदाई खदोखाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी मुलाकात का अहवाल बताया। ज़राए की जानिब से बताया गया है जबकि 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा है, जाली हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आपको बताते चलें कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नस्ब करदा और जाली है। इन तमाम तर ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया, जबकि आज या कल आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बताया गया, उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। शरीफ साहब जब अभी उनकी जमानत पर रिहाई नहीं हुई थी और वो जेल में थे, तो उस वक्त भी मैंने इरादा किया था कि मैं जेल में उनको मिलूं और उनकी बीमार पुरसी करूं, लेकिन मुझे उस वक्त कोई मौका हाथ नहीं मिला। यहाँ तक कि फिर उनकी ज़रा आर्जी किस्म की एक ज़मानत भी हुई और उस वजह से आज वो घर पे हैं। तो चंद दिन पहले मेरा उनसे फ़ोन पे रब्ता हुआ था और आज का दिन तय हुआ कि हम इंशाल्लाह लाहौर में मिलेंगे। तो आज मेरी यहाँ पर जो मौजूदगी थी उनकी खिदमत में, वो सेहत पुरसी के हवाले से थी और उसी हवाले से उनसे हाल अहवाल भी किया गया और यहीं तक इसी एजेंडे तक महदूद थी, कोई दूसरा एजेंडा उस मीटिंग का नहीं था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब दो बैठते हैं तो सियासी लोग बात भी करते हैं, सियासी उमूर पर भी बात होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मुश्तरका किस्म की जो तशवीश हम दोनों ने महसूस की बैठते, वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त हचकोले खा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी। और मैं समझता हूँ कि ये एहसास एक पूरी कौम की इस वक्त एक मुश्तरका एहसास है जो यकीनन एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही थी कि अब क्या किया जा सकता है कि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकें और मुल्क के मुस्तक़बिल को हम महफूज कर सकें। मेरे ख्याल में इस एतबार से तो हम सब एक पेज पे हैं कि जब इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद सब एक पेज पे आ गए थे कि जी ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं, जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर-ए-आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ियत नहीं रखते, मईशत के हवाले से उसके अबजद से भी वाकिफ। मौलाना फजलुर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आपने मुलाहिजा किया, इसी हवाले से हम बात करेंगे। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है, उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी उस्मान खान, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और ये भी बताइएगा इस मुलाकात में किन किन सियासी जो है मामलात उन पर तबादला ख्याल किया गया है। जी बिल्कुल, जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज जाती उमरा में मुलाकात हुई और 1-on-1 मुलाकात 2 घंटों तक जारी है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बीमार पुरसी की, दूसरी जानिब जो है वो इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि मुल्क में जब से नई हुकूमत आई है तब से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके बाद गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। जबकि दूसरी जानिब से जमात उलमा इस्लाम की जानिब से जो मुल्क भर में मिलियन मार्च किए जा रहे हैं, उस हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इस बात पर हिमायत भी की कि मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो है वो JUI के जो मिलियन मार्च है वो सही किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो मुश्तरका तौर पर जो है वो हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक लाए जाने पर भी गौर किया गया। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात का भी इंदिया दिया है कि वो 48 घंटों के अंदर अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे और आज जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जिन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया उस पर तफसीली तौर पर
जो है वो उस्मान साबित खान, चल आपका रहा बहुत शुक्रिया, आप हमें इस मुलाकात के हवाले से अपडेट करें। अब आपको बताएं कि रमजान शुगर मिल्स केस का अहम मरहला सामने आ गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सेहत जुर्म से इनकार भी सुनने में आया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस मौका पर शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि 10 सालों में सरकार के 2300 अरब बचाए हैं। अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है। अदालत की जानिब से इस पर यह जवाब दिया गया है। जबकि आपको बताते चलें कि आइंदा समाअत पर गवाहान शहादतों के लिए तलब किए गए हैं। और इस मौका पर हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इसी पर बात करेंगे, शाहीन नतीक ने ज्वाइन किया है। जी शाहीन नतीक, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने रमज़ान शुगर मिल में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इन दोनों पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी, जिस पर दोनों ने फ़र्द जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत की तरफ से नैब को आइंदा तारीख पर गवाह जो है वो पेश करने की हदायत जो है वो की है। आज अदालत में फ़र्द जुर्म आयद की गई तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वारिस जंजुआ, उनका कहना ये था कि इन्होंने जो रमज़ान शुगर मिल के बाहर जो नाला था वो सरकारी ख़जाने से जो है बनाया गया, जिसमें से 213 मिलियन की एम्बेज़लमेंट जो है वो सामने आई है। जिस पर अदालत में शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने अदालत को बताया कि मैंने 10 साल जो है वो मुल्क की खिदमत की और क्या मैं 10 सालों के दौरान जो है वो गंदे जो नाला था उस पर से सरकारी रकम जो है वो खुद कर सकता था। इस पर अदालत ने कहा कि आप का हक है अपना मौक़िफ़ जो है बताने का। ताहम अभी जब समाअत जब शुरू होगी उस पर आप अपना मौक़िफ़ जो है वो बता सकते हैं। ताहम अदालत में जो रमज़ान शुगर मिल थी उस पर दोनों का पे फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई। अदालत में आज आशियाना स्कैंडल केस की भी जो है वो कार्रवाई की गई और उस पर जी ठीक है शाहीन नतीक, बहुत शुक्रिया आपका।